So I'll not bore you today. We're just gonna do some practical stuffs with finance. ठीक है, जो पीछे बैठा ना आगे आ जाओ, बहुत काम करना है. ठीक है, मुझे 2 वॉलेंटियर चाहिए. खुद से उठ के आ जाओगे तो आ जाओगे, नहीं तो फिर मैं उठाऊंगा. ठीक है, 2 वॉलेंटियर. एनीवन who wants to come? It's a basically a. Thank you. Who else? Wonderful. Anybody else? One more I want. Come on from the guys, man. आजा आजा आजा. तो शर्मा क्यों रहे हो यार, शादी नहीं हो रही है. Yes. Okay. So I'll teach you some finance today. Investments. Come. Okay. Can you introduce yourself? Hello everyone, my name is Ray Somochi and I am first year. Wonderful. What do you? My name is Aarti and I am first year MBA student. Myself, Kashish Mutpuri. MBA? Yes. First year. Yes. Okay. Great. So, do you guys know them? How much? Very well? Not very well? Okay. So, think of the fact that हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके बात करता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आराम रहे. 3 people are there here. Let me give you an offer that you can actually invest in them, and for the rest of their lives you can earn a part of their salaries every month. Think about. आप इनमें इन्वेस्ट कर लो, ठीक है, मैं आप इनको ऑफर देंगे भी, कितना दे विल चार्ज, ठीक है, and you can actually earn a part of their, you can take ownership, 25-30% ownership of their salary that they're going to get in the future. तो सबसे पहले ये 3 कैंडिडेट हैं आपके सामने. आप क्या क्या क्वेश्चंस पूछोगे ताकि आप ये डिसीजन ले लो. पैसा लगेगा, फुकट में नहीं है. एनीवन? Sorry? Past qualification. So what is your past qualification? BBA and HR. Any other? What about you? BCom. BCA. CGPA. 8.56. 8.05. All are good. Now, what else am I going to ask? So, have you decided whom to invest in? Still deciding. Okay, decide. What about you? Sir, I would like to know whether she has invested or done some kind of, so I can get an overview of what type of. What has she done before Yes. in terms of income? Yes. Okay. I would. I'm not sure that's How much do you earn? for 2 months. Yeah. What is the approximate range of CTC? It was around 3. 3 LP उसने कमाया है पहले भी. आपने कुछ कमाया इससे? फ्रेश है, 0. स्टार्टअप. Pressure. स्टार्टअप. और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? गोल्स एंड विजन्स. क्या गोल है भाई? So basically, I want to enter into the corporate sector as in marketing, as well as I want to start my own business. But initially, I will go to it for gaining experience. तो मार्केटिंग हेड का कितना सैलरी होता है अगले 10 साल में? एटलीस्ट आज के टर्म्स में मिनिमम होगा 2 लाख महीने का. तो 24 लाख का इनकम पॉसिबल है. अभी आप थोड़ा फिक्स कर लीजिए. आपका नाम क्या होता था? सॉरी. श्रेयस हैज अर्न प्रीवियसली, सो ही हैज गिवन यू सम प्रूफ दैट वो कमा सकता है. अभी भी काम कर रहे हो ना? अच्छा, तो काम किया है उसने, दिया है. सीजीपीए भी अच्छा है, क्वालिफिकेशन तीनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, और आगे जाके उसको थोड़ी सी क्लैरिटी है कि ही वांट्स टू बिकम मार्केटिंग हेड. आपका? I'm looking for corporate experience for a few years. Then I am having a plan of starting something of my own. What was that going to be? Yes, I don't want to share it. Okay. But let's say, how much will that earn? Let's give, the investors are there. I do have a big plan. Okay. I might say I will start with 10 lakhs per month. Per month. Okay. In how many years? 5. 5 years. Okay.
सैलरी एक्सपेक्टेशन कितना है? प्लेसमेंट करना पड़ेगा ना. If I say finance, it starts from 50,000 per month. 6 लाख का. ठीक है. आपका? मेरे दिमाग में अभी ऐसा तो कुछ है नहीं. अरे ऐसे नहीं, इन्वेस्टर खड़े हैं. Go with the flow. हाँ. जैसे अभी एमबीए चल रहा है वैसे चलते रहेगा. एचआर स्पेशलाइजेशन लेना है. उसके बाद नौकरी करनी है. ठीक है. अभी और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? अभी किस में इन्वेस्ट करोगे? श्रेयस में कितने लोग हाथ उठा जी? वाओ. डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं. श्रेयस ने नहीं किया तो आपका पैसा डूब जाएगा. तो डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए ना. और गो विद द फ्लो भी तो सही है. हो सकता है कुछ आइडिया आ जाए तो. अच्छा, एक और क्वेश्चन. अभी आप लोग ने सब बहुत ही एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल फैक्चुअल डेटा पूछा है. इसके अलावा आप कुछ और नहीं पूछना चाहते? इज दैट गोइंग टू बी इनफ? I have not met you guys. Don't you think you want to ask some questions apart from the financials? Don't you think? What if the numbers that Shreyas is telling is all false? See, I'm not trying to point you out, by the way. I'm just giving an example. Don't take it to heart. It's just example. I'm just pointing out that what if what Shreyas is giving is not trustable? How can you blindly trust him? So don't you think ethics would also come in between? Intent, previous, not so correct things done. Now, forget about them. Think about the same about a company. You look at numbers of companies, right? They're very good. Maruti, Mahindra, any company stock market में जो भी आपको 2400 स्टॉक्स दिखते हैं, उसमें से आपको नहीं लगता कि हम खाली नंबर देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो वैल्यू सिस्टम है कि जो नंबर्स आपको एनुअल रिपोर्ट में देख रहे हैं, अगर वो पूरे के पूरे फर्जी निकले तो, जो कि होता है. कॉक्स एंड किंग्स का नाम सुना है आपने? कंपनी थी, ऑलमोस्ट 150 इयर्स ओल्ड कंपनी, लिस्टेड थी. डेक्कन कौन सा क्रिकेट आईपीएल का टीम भी था उनके पास. डेक्कन चार्जर्स का ओनर भी था वो, प्राइवेट जेट भी था. एंड अभी स्टॉक उसका, अगर आपको गूगल करना, गूगल करिए, कॉक्स एंड किंग्स स्टॉक प्राइस ढूंढिए, जस्ट सर्च इट आउट. इंटरनेट चलता है ना? हाँ, कॉक्स एंड किंग्स स्टॉक प्राइस ढूंढिए. दूसरा एक और मैं एग्जांपल देता हूं, विच इज, हाँ आप लोग बैठ सकते हैं. थैंक यू सो मच. सी आई मेड यू सो फेमस. Okay, all done in good faith. Please do not take it to heart. I hope. तलवलकर सुना है? तलवलकर जिम्स सुना होगा कभी पहले. कोई जिम जाता है इधर? जाते जिम? हाँ, उसका स्टॉक प्राइस भी देखना. कॉक्स एंड किंग्स का भी स्टॉक प्राइस ढूंढिए और तलवलकर जिम का भी स्टॉक प्राइस ढूंढिए. और स्टॉक प्राइस क्या है बताइए? कितना है? 1.75 रुपीज. कितना था पहले? 1.1 रुपए का हो गया. 150 साल. आप ये भी नहीं बोल सकते कि 150 साल की कंपनी है तो इट कैन नॉट डू अनवेल. 1 रुपए का हो गया. क्या हो गया ऐसा? बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स विच डू नॉट सी नंबर्स, विच आर देयर बिहाइंड, in terms of how you run the business, in terms of the culture, in terms of the ethics, in terms of the ghapla that the company can do. Because you are only looking at annual report, which I am presenting it to you. But what we are not seeing is what is behind it, right? Okay, so this was one example. I hope you understand that what finance actually means. Finance is more than just looking at numbers and spreadsheets. Okay, now let me take you through some, I don't know where I kept the remote. Yes, sorry. So I'm going to take you through teaching you stock picking today. Okay, very practical with real brands probably which you have seen. So can anybody answer this question? What's the first thing that comes into your mind when you hear finance? Money management, stock market. वो तो अभी मैंने बोल दिया, इतना stock market तो stock market ही बोलेंगे. Inflow and outflow of cash. Anything else? Broke.
being broke, no money, pocket money. That's also finance. What else? Balance sheet. What do you see? Cars. So obviously I'm not talking about automobile cars, right? Stocks which are related to automobiles. Let's say we want to invest in automobile company. ठीक है, इंडियन बेस्ड 3 ब्रांड है. आप कौन सा चूज करेंगे पहले? हाउ मेनी फॉर टाटा? और सब लोग घूम के दूसरा भी देख लीजिए पीछे से कि कितने लोगों ने क्या क्या हाथ उठाए हैं. ठीक है, टाटा टाटा टाटा. हाँ, मारुति उल्टा देख लो कितने लोग हैं. कितने हैं? 0. महिंद्रा देख लो कितने. हाँ. विच वॉज द फर्स्ट वन टू लॉन्च ईवी? ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल किसने सबसे पहले लॉन्च किया? नहीं, महिंद्रा ने किया था. E20 देखा होगा ना, वो छोटी सी गोल्फ कार टाइप्स जो कोई नहीं चलाता है. देन इट वाज टाटा एंड देन मारुति ने अभी तक लॉन्च किया गया? वो भी बोल रहा है 2026 में आएगा, देखेंगे. अभी तक नहीं लॉन्च किया, आपने हाइब्रिड लॉन्च किया. ठीक है, अभी मैं आपको स्टॉक परफॉर्मेंस दिखा रहा हूं. इधर 3 डेटा पॉइंट है. डोंट गेट टू कंफ्यूज्ड इवन इफ यू आर नॉट एंटर्ड फाइनेंस. ओके, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड. Just talking about 3 different parts of the business. So green means sales growth. Sales कितना बढ़ रहा है? अगर 100 का 200 हो गया तो 100%. तो वैसा वो ग्रीन में दिया हुआ है. प्रॉफिट ग्रोथ मतलब नेट इनकम कितना बढ़ रहा है? 100 रुपए का अगर रेवेन्यू है और अगर 20 बचा नेट इनकम में तो प्रॉफिट इज 20. उसका ग्रोथ कितना है? ये ऑरेंज में दिया हुआ है. और फाइनली स्टॉक प्राइस. स्टॉक प्राइस एनुअली कितना बढ़ रहा है? तो वो रेड में दिया हो. अभी वापस आप डेटा देख लीजिए, आप कौन सा स्टॉक उठाएंगे ये डेटा के हिसाब से. अच्छे से देख लो, आराम से. कुछ डेटा मैंने चेंज नहीं किया, हो सकता है टाटा ही हो. देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर. हाउ मेनी फॉर टाटा? डिच मार दिया टाटा को. महिंद्रा वो उल्टा देखो, उल्टा है ना, बहुत है. मारुति ठीक है. मारुति की गाड़ी पसंद नहीं है क्या? फैशनेबल नहीं है. ठीक है, अभी मैं आपको डेटा दिखाता हूं दूसरा, अच्छे से देख लो. अभी जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था टाटा और महिंद्रा, सबसे पहले दिमाग में आपके क्या आया? गाड़ी. जैसे मैंने 3 लोगों को खड़ा किया था इधर, तो सबसे पहले आपने क्या देखा? उनका क्रेडेंशियल्स, कि उनकी गाड़ी आपको पसंद है क्या उसकी गाड़ी या नहीं. यही आया था शायद. मारुति क्यों नहीं पसंद है? किसी को मारुति चलानी नहीं है. करेक्ट. महिंद्रा चलानी है, थार चलानी है. करेक्ट. बट अब मैं पैसेंजर सेगमेंट का आपको डेटा दिखा रहा हूं, एक्चुअल परफॉर्मेंस. मारुति सुजुकी का रेवेन्यू कितना है पैसेंजर में? 1.5 लाख करोड़. ठीक है. महिंद्रा कितना है? टाटा का कितना है? ठीक है. डीलर्स कितने हैं मारुति के? 3,800. महिंद्रा कितने हैं? और टाटा के कितने हैं? और आगे जाइए, थर्ड कॉलम बता रहा है कि कितना टाइम लगता है इन्वेंट्री बेचने में, मतलब कार बेचने में. एवरेज इन्वेंट्री डेज कितना है मारुति का? कभी आप गए हो मारुति के स्टोर में और आपने बोला कि गाड़ी 1 साल के बाद मिलेगी? कभी ऐसा हुआ है? इंस्टेंटली मिलती है, 1 महीने मैक्सिमम. महिंद्रा में कभी गाड़ी इंस्टेंटली मिलते हुए देखा है? अगर आपके पास थार के पैसे भी हैं तो आपको गाड़ी कब मिलेगी? कितना है वेटिंग महिंद्रा थार का ऑन एन एवरेज? 2-3 महीना तो मैं भी ले लूं. 1 साल का वेटिंग है जब तक कि आपका नया मॉडल आ जाएगा. ठीक है. अभी आप मुझे बताइए कि अब क्या इन्वेस्ट करोगे आप? हमने दूसरा डेटा दिया. ये नंबर तो देखा नहीं था ना हमने, क्योंकि गाड़ी देखा था हमने. Superficial things are first come when we are looking as an analyst at data. We're just looking at the product. We're not looking at the inside story, right? Now I'll show you something else. ये ऊपर जो आपको दिख रहा है थोड़ा क्लियर नहीं होगा, लेकिन ऊपर जो ऑरेंज आपको लाइन दिख रहा है, दिस इज बेसिकली मारुति का मार्केट शेयर. कितना गैप है उसके और नीचे के ग्रुप में?
बहुत ज्यादा गैप है। आपको लग रहा है कि ये अगले 10 साल में भी कम होगा? आपको कैसे पता? आपको लगता है कम होगा गैप मार्केट शेयर? मारुति का मार्केट शेयर घट सकता है क्या? घट सकता है? No, I don't think so. Why? I think so. Tata's and Mahindras will come Why? and compete with Maruti. I guess they'll acquire their share. Okay. Any other answers? Okay, I'll go to the previous data. Now you tell me the answer. Why do you think it is very difficult to beat market share of Maruti? Think about, look at the data here. This data will itself tell you which is the most difficult thing to do out of these three columns. Yes, you are good finance students. You got the point. यहां से यहां जाने के लिए आप एक गेस वर्क करते हैं कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन दोनों कंपनी को। 1000 से 3800 डीलर जाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? आप एक गैस मारिए, करोड़ों में ऑब्वियसली। कितना? एक गेस्टिमेट। 400 करोड़ में तो यार डीवा पटेल भी नहीं बनेगा। 2800 करोड़ और ओके, गेटिंग क्लोज, 48,000 करोड़ लगेंगे, $4 बिलियन। अब मुझे बताइए, अगर आप महिंद्रा में हो और टाटा के मैनेजमेंट में हो तो आप क्या ऐसे ही बोलो हम मारुति के साथ कंपीट करना है, कल 48,000 करोड़ इन्वेस्ट कर देते? करेंगे क्या? प्रॉब्लम क्या है कि आपको नहीं पता वो 48,000 करोड़ करने के बाद भी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। दूसरा है डीलर एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी आपका ओपिनियन चेंज हो गया। ये जो आपने अभी किया, दिस इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट फाइनेंस एंड दिस इज हाउ यू एक्चुअली पिक अप स्टॉक्स। Let me give you some other examples also. Okay, these are obviously one of the examples, but I'll give you some other examples also. You've all heard about Asian Paints. You've all heard about Berger Paints. You've heard about Titan, Tanishq, ये वाले brands है ना. You might have also heard about TCS, right? What is common among all of these companies that they are outperforming? Is it only their product? Is it really their product? Or is it something very different in terms of the broader strategy? जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, एशियन पेंट्स को compete करने के लिए बाहर से यूएस की भी कंपनी आई थी, which is mega big in US. तो पैसे के मामले में तो it had a lot of money. आया भी, सेटअप भी किया, 1 साल के अंदर में वापस भी चला गया। बताइए क्यों? और दूसरे पेंट्स कंपनी भी हैं इंडिया में, लेकिन they are never able to compete with Asian Paints. Do you know why? It's not because about finance. Yeah, please go ahead. Yes, too close. I mean, you can say they invested in data science. So what they do is every store of them, जो इसका एशियन पेंट्स का है, उसमें हर एक जो आपका ये पेंट का बॉटल है, that is inserted properly, like it's in the system. They exactly know what is the color mix. They exactly know कौन से लोकेशन में क्या कलर की डिमांड है। तो जैसे ही उसका एक सामान निकलता है, रिफिल शाम तक आ जाता है। कमीशन कम देता है एशियन पेंट्स डीलर को, फिर भी डीलर दूसरा पेंट का नहीं बेचना चाहता है। क्यों? क्योंकि भले आप एक कमीशन दे दोगे, लेकिन मैं यहां पर वॉल्यूम पे ज्यादा पैसे कमा लेता हूं। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ एशियन पेंट्स व्हिच इज नॉट नथिंग रिलेटेड टू प्रोडक्ट इटसेल्फ। प्रोडक्ट में पेंट तो पेंट ही है, पेंट में आप कितनी इंप्रूवमेंट करोगे, लेकिन इट वाज अबाउट प्रोसेस। ठीक है, आप को एक और एग्जांपल देता हूं, टीसीएस। आपके हिसाब से टीसीएस क्या करता है? सॉफ्टवेयर बनाता है, ये मत बोलना। बिलिंग करता है पर आवर की एक डेवलपर को देने के लिए यूएस के कोई काम के लिए। ठीक है, टीसीएस। लेकिन वैसे तो बहुत सारे आईटी कंपनीज हैं। कितने आईटी कंपनी? माइंट्री है, इन्फोसिस है, एलएनटी है। डिफरेंस क्या है? यस, एक्सेंचर भी है। क्या डिफरेंस क्या है? व्हाई इज टीसीएस द बिगेस्ट company in IT in India? It's because not even because of the product, it's because of the hiring capability. At one point in time,
TCS can go into all the engineering colleges in Pune, India, and get the developers. And that only TCS and Infosys to a certain extent have been able to do. So it's not even related to product. Look about Titan. You know what Titan? Titan में कितने कितने ब्रांड्स हैं? फास्ट ट्रैक, चश्मा, ठीक है, टाइटन वर्ल्ड, ये घड़ी वड़ी, ठीक है, फिर लाइफस्टाइल ब्रांड्स कौन से हैं? स्किन, वो परफ्यूम्स आने लग गए आजकल, है ना. हीलियोस इज अ ब्रांड, इनमें मल्टी वॉच के ब्रांड्स मिलते हैं. फिर अगर आपको जाना है साड़ी, तो तनेरिया हैज बीन स्टार्टेड. तनेरिया इट स्टार्टेड इन लक्ष्मी रोड. If you want to buy chashma, then that is also there, like that proper spectacles wale chashme. What is Titan doing here? Can you guess what is it doing? Why these kind of businesses? ज्वेलरी में देख लो, तनिष्क है, कैरेट लेन है, मिया है, क्या कर रहा है? मतलब इतने सारे ज्वेलरी ब्रांड क्यों खोल के रखे हुए हैं? बराबर है, लेकिन वो तो सब दूसरे भी कर सकते हैं. 2017 में क्या हुआ था फाइनेंस के टर्म्स में, इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से, इनकम टैक्स में या टैक्सेशन में क्या हुआ था? जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हुआ था. जो आपके गली में जो ज्वेलर्स होते हैं, वो पहले क्या जीपे पे पेमेंट लेते थे क्या? किस पे पेमेंट लेते थे? तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव कैश में लेने का क्या था? मार्जिन. टैक्स अवॉइड करना है, मार्जिन बनेगा. जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया, पैन कार्ड चाहिए, तो आप भाग ही नहीं सकते आप. अब आपको लगता है वो ज्वेलर का मार्जिन बचेगा? टाइटन ने इसीलिए ज्वेलर्स के इतने ब्रांड्स खोले हैं. अभी भी वो ज्वेलर्स जिंदा है बाय द वे, क्योंकि टाइटन ने एक और उसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या कर दी कि उनको सप्लायर बना दिया. इसका मतलब टाइटन खुद कुछ बनाता ही नहीं है, खाली डिजाइन का स्ट्रक्चर बनाता है और सोर्स करता है अपने ज्वेलर से ही. इसका मतलब इन्वेंटरी भी नहीं रखना है. पहले आप देंगे मुझे एडवांस 20,000 का रिंग बनाने के लिए, फिर मैं दूंगा अपने ज्वेलर को बनाने के लिए. इसका मतलब आप पैसा मुझे पहले से ही दे रहे हो. कोई ज्वेलर शॉप में ऐसे देखा है? जनरली क्या है, आपको एडवांस देना पड़ता है ना, या आपको ज्वेलर बना के देगा एडवांस में, यहां पर पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा. और इसी वजह से आप देखो तनेरिया में क्या है, साड़ी का बिजनेस. साड़ी का बिजनेस कहां पर है? मतलब अनऑर्गेनाइज मार्केट है. हर एक दुकान, हर एक सिटी में जाइए, आपके दुकान का कोई ऐसा स्पेसिफिक ब्रांड है क्या? वही मार्केट्स को उसने कैप्चर किया. दैट वाज द स्ट्रेटजी. सो एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट आपका काम क्या है? ये चीज आइडेंटिफाई करना. बाकी जो स्प्रेडशीट में कैलकुलेशन करेंगे वो बहुत इजी है. वो तभी हो सकती है जब आप बिजनेस समझो. तो अगर मैं फाइनेंस को डिवाइड करूं दो एस्पेक्ट्स में, करियर के एस्पेक्ट्स, आई एम टॉकिंग फ्रॉम करियर एस्पेक्ट्स. वन इज व्हाट वी जस्ट डिड. We are outside Titan, we are outside TCS, we are outside Infosys, and then we are deciding should we invest or not. That is investment banking on the left hand side. ठीक है. लेकिन अगर आपको टाइटन के अंदर बैठ के उनके प्रोजेक्ट्स में काम करना है, डिसाइड करना है कि 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, लेट्स से इन डीलरशिप फॉर महिंद्रा एंड फॉर टाटा, दैट विल बी कॉर्पोरेट फाइनेंस. Understood? Did you understand? Did you understand? These are the different areas of an investment bank where you can work. Not a lot of people will tell you about these details because you will not know what to search. See, people say everything is in internet, but the problem is what to search. That somebody has to tell me, no. So investment banking has, and this slide has a lot of consequence for your career. Because you might think that, oh, I'm got into investment banking, but you might just be in back office here. And then moving out of back office is not easy. Okay? You might say that I've got into investment banking, but you might be in middle office. But maybe what you wanted to become is into research. Very different requirements in these three offices. Okay? So front office है, अभी जो हमने काम किया स्टॉक बुकिंग का, प्रॉपर रिसर्च का, फाइनेंस का दिमाग लगाया, बिजनेस रिसर्च किया, दैट विल कम अंडर फ्रंट ऑफिस. आपने किसी के पास डीमैट अकाउंट है, कभी ट्रेडिंग वेडिंग किया है, तो ट्रेडिंग करने के बाद आपको रिपोर्ट्स आते हैं, रिकंसिलिएशन रिपोर्ट्स, वो सारा काम जो है वो है बैक ऑफिस.
जो इंडिया में BNY Mellon, eClerx, Northern Trust, all these companies work for back office work of US. Okay. The only thing is here not a lot of finance is required. You need to know basic understanding of what is equity, fixed income, mutual fund, and you'll get the job here. Initial might be a good start to start here, but if you want to eventually work there, उधर की रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग है. उधर रिक्वायरमेंट है बिजनेस एनालिसिस में, अंडरस्टैंडिंग में करने में इंटरेस्ट रहना चाहिए, जो अभी हमने किया. बिजनेस में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस करने में अगर आपको दिलचस्पी है, इफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड, यू क्यूरियस, ये जब एशियन पेंट्स का ये स्टोरी पता लगा तो आपको बहुत यूरो का मूवमेंट हो रहा है तो फिर आप रिसर्च के लिए बने हो. अगर आप वहां पर आपको ये यूरो का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो आप रिसर्च में खत्म हो जाओगे, क्योंकि मेरे जैसे लोग रहेंगे जो आपको कंपटीशन देंगे और मैं दिन रात इसी के बारे में सोचूंगा और आप जॉब के हिसाब से जॉब करोगे. तो फ्रंट ऑफिस में करने के लिए आपको क्या चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग चाहिए. स्किल्स भी चाहिए, मैं स्किल्स में आता हूं एक बार में, लेकिन यहां पर आपको कोई क्वेश्चन है ये स्लाइड में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, दूसरी साइड. These are real salaries I'm giving you. If you are working in the front office side, in any of these positions, as a fresher, you can earn these kind of salaries. Tres Vista is in Pune. You can Google it out yourself only. Tres Vista research jobs in Pune. And you can see fresher MBA. No any such criteria कि MBA tier 1 का होना चाहिए, tier 2 का होना चाहिए, कुछ नहीं. MBA है, टेस्ट क्लियर करिए, फर्स्ट राउंड फाइनेंशियल मॉडलिंग का टेस्ट होगा, मतलब यही जो अभी हमने सिखाया आपको. और अगर आपने वो कर लिया तो आपका सेकंड राउंड और फाइनल राउंड होके यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दिस. देयर आर ऑब्वियसली स्मॉलर कंपनीज आल्सो, बुटीक कंपनीज व्हिच विल नॉट पे यू दैट हाई. जैसे कि मान के चलिए आप मैक्सिम रिसर्च में जाते हैं, इट्स अ बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक इन पुणे, तो दैट कंपनी विल गिव समवेयर अराउंड 3.5. But even then, that is good because you're getting core experience. Front office is like entering Bollywood. You want to work in the film industry, then you need core experience. Core मतलब acting किया होना चाहिए, तो आपको बॉलीवुड में एंट्री मिलेगी ना. आप बोलोगे कि मैं MBA करके आया हूं इसलिए मुझे एंट्री मिलेगी, नहीं मिलेगी. ठीक है, इंटरव्यू प्रोसेस ऐसे चलता है. ये मैं आपको अभी से ही बता रहा हूं क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हो, आपके पास अभी टाइम है ये सब चीजें करने की. इंटरव्यू फेस टू फेस नहीं होता है. Gone are the days when people will call you because you are an MBA, please come, we'll sit face to face and I'll ask you questions and you answer me. Not going to happen because there are so many students. How will you filter? So they're going to send you a test. So your MBA, by the time you actually clear it, you will obviously get shortlisted. And the best time to get placed is right after your MBA. Like when you are in your final placements, make sure to get placed at that time. The more gap after MBA you will create, गैप का क्वेश्चन आने लग जाएगा. जितना आप सपोजिंग अगर 2026 में आप पास आउट होने वाले हो, इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026, लेट्स से इफ दैट इज द प्लेसमेंट साइकिल, यू गेट प्लेस्ड. इफ इट गोज टू 2027, then questions will arise, why did you not get placed? Right? Companies will take some time to shortlist you. So if you want the shortlisting problem to solve, make sure the time is in your mind. Second is skills. When I'm saying skills, just don't think skills in general. It's not that simple because see, sitting here, we do not understand how the industry thinks. Industry doesn't care that you have spent 2 years in an MBA college, or if I have done CFA, or even if I am a CFA charter, industry को कोई मतलब नहीं है. मेरे फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में CFA लेवल 2 करके गया था मैं. ग्रेजुएशन किया, मैंने MBA नहीं किया था, पैसे नहीं थे इसलिए नहीं किया था. और मैं सेकेंड लेवल 2 कंप्लीट करके मैं फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में गया थिंकिंग दैट मैं लेवल 2 किया तो मेरे को भाव मिलना चाहिए, आई शुड गेट सम रिस्पेक्ट. I did not know that the other person who is taking my interview is a CFA charter holder, and he says that your CFA has no meaning. It has got you till here. Now this business is serious business, and he literally gave me this feedback. This is way back in 2011. Today we don't even get that opportunity to sit back.
So maybe all these qualifications will get you shortlisted, but again, skills, when I'm saying specifically, I'm talking about finance related skills. How many of you are from BCom background? Okay, I'll tell you, I'll prove it to you what I mean by skills. Okay, you guys know income statement, balance sheet, and cash flow? How many times have you learned this? How many times? Like 11th, 12th also? Maybe? Graduation also? Okay. If I say that you guys use Amazon, have you ever used Amazon? Okay. So Amazon mein, you get gift cards. You get? So if you buy a 1000 rupees ka gift card, I buy a 1000 rupees ka gift card from Amazon. You as an accountant at Amazon, will you recognize 500 or 1000 rupees as revenue in income statement or not? This is an interview question. Should I repeat it? 1000, I took a gift card as a customer. You have the data as an accountant. Will you record this as a revenue or not in the income statement? How many for yes? One more data point I'll tell you. Some you have read statistics पढ़ा है पहले. Group thinking मत करिए, क्योंकि एक ने हाथ उठा दिया, all are wrong. What is the first and primary rule of revenue recognition? Revenue is recognized when risk is transferred, or product is delivered, or the service is rendered. Has these three activities been done? क्या आपका Amazon का गिफ्ट कार्ड लेके मैंने कुछ सामान खरीदा है क्या? तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे हुआ? This is what I meant by the second test. These are the kind of questions which will come. Plus, this is the kind of exercises that you will have to perform and do it well in order to have any chance of getting into the third round. Getting it? I'll give you some examples now. These are real investment banking examples. eValueServe, also known as EVS, is a famous recruiter for finance, specifically research positions in India. It has an office in Bangalore and Delhi. They send this exercise to you. It's a spreadsheet, Excel, in which there is already a financial model. कोई forecasting करके रखा हुआ है. उसमें आप देखिए जो लास्ट दो कॉलम में नीचे दिख रहा है क्या यहाँ पर ये बैलेंस शीट क्या होता है? टैली होना चाहिए ना हमेशा. ये टैली हो रहा है क्या? नहीं. यू जस्ट फाइंड द एरर इन द बैलेंस शीट. इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो है. ये तीनों में लिंकेजेस में कोई तो प्रॉब्लम है, सॉल्व करके भेज दो, सेकेंड राउंड हो जाएगा. सच अ सिंपल एक्सरसाइज, बट इट्स नॉट दैट सिंपल, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट adjustment of numbers. It is about finding the errors, where exactly the calculation wrong happened in income statement, where exactly did it wrong happen in cash flow statement, and then send it back. And then even if you cheat, no problem. You cheat, you get it done by someone else, but in the interview they'll ask you, explain कर चल. खत्म इंटरव्यू. ये है मिडकॉन पुणे का, पुणे बेस्ड कंपनी, प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए हायरिंग करती है. ठीक है, कोर रोल है, 6.5 लाख देने के लिए रेडी है. बस एक चीज चाहिए. ये एजम्पशंस दिए हुए हैं, एक बिजनेस चालू करने के एजम्पशंस दिए हुए हैं, एक प्लांट सेटअप करना है, बहुत कम डेटा दिया है, बाकी सब आप रिसर्च करो, मॉडल बना के आ जाइए. मॉडल सिलेक्शन हुआ, वीपी हिमसेल्फ विल टेक द इंटरव्यू, नो मैटर व्हाट योर बैकग्राउंड इज. इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो भी चलेगा, विल गिव यू द जॉब. ठीक है. थर्ड, SG एनालिटिक्स पुणे, इट्स बेस्ड आउट ऑफ खराड़ी. ओके, डज नॉट इवन वांट मॉडलिंग, स्प्रेडशीट भी नहीं भेजता है, सिंपल फाइनेंस के क्वांटिटेटिव कैलकुलेशंस हैं, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वाली. अब आप मुझे बताइए, ये पूरा का पूरा अगर मैंने क्वेश्चन किसी को दे भी दिया ना, तो ही वो इंटरव्यू फेल होगा. बिकॉज जस्ट रोट लर्निंग द इंटरव्यू प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज इन द रियल राउंड यू गोट टू एक्सप्लेन. वो एक्सप्लेनेशन में सब खत्म हो जाते हैं. This, did you know this? By the way, this is how interviews happen. Did you know this? Did you know that finance interviews happen like this? Any idea? पता था आपको ये? कितने को पता था ये पहले कि ऐसा इंटरव्यू होता था? किसी को नहीं पता था? अच्छा, अभी मैं आपको एक और चीज प्रूव करने के लिए कि क्यों ऐसा चेंज हो चुका है. ये अभी चेंज नहीं हुआ है, ये 6 से 7 साल से चेंज हुआ है. आप ऊपर देखिए, क्रिसिल सबको जाना रहता है. क्रिसिल में
क्योंकि रिसर्च की कंपनी है, अच्छा पगार देती है, अच्छा एक्सपोजर भी देती है। अब टॉप में देखिए मैंडेटरी स्किल्स क्या है, क्या स्किल है भाई? बरोबर। और नीचे क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या चलेगा? सीए भी चलेगा, एमबीए भी चलेगा, सीएफए भी चलेगा। तो आप शॉर्टलिस्ट तो हो रहे हो ना, इसका मतलब क्रिसिल में शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। लेकिन उधर ऑप्शन दिया है नीचे, सीए सीएफए एमबीए का ऑप्शन दिया है, ऊपर ऑप्शन दिया है क्या? और जॉब में क्या करना है वो देखिए, build and update company industry models, create and maintain databases of companies, work regular research publication, earning reviews, keep a track of latest developments in companies. Don't expect ever any qualification to have such coverage. Not possible. Any syllabus of any qualification is too slow to adopt or adapt to what is happening in the industry. Too slow. ठीक है? And even if they wanted to change, there's so much bureaucracy कि अगर मेरे को एक सिलेबस में एक लाइन भी चेंज करना है तो मुझे 10 परमिशंस चाहिए, जो इतना आसान नहीं है। ठीक है? दिस इज माय रिकमेंडेशन फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज इन फर्स्ट ईयर। डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू इन सेकंड ईयर इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। प्लीज डू नॉट कम टू सेकंड ईयर एंड रियलाइज ओ नाउ आई वांट टू डू फाइनेंस। टू लेट, बिकॉज ऑल द वर्क का टाइम जो है वो आपके पास फर्स्ट ईयर में है। सेकेंड ईयर में आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, आपका इंटर्नशिप चालू हो जाएगा, फिर आपके एग्जाम्स होंगे, फिर आपका प्लेसमेंट होगा। यू डोंट हैव टाइम, प्रोजेक्ट सबमिशंस हैं। अगर जो भी आपको डेवलप करना है इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इट हैज टू बी डन इन फर्स्ट ईयर। व्हाट डू आई recommend to do in first year? First, learn skills like financial modeling. How do you know that you want to get into finance? Unless there was a यहाँ बाहर ना एक अच्छा सा कोट लिखा हुआ है, किसी ने पढ़ा है क्या? If there is no adventure, then there is no point of living. ऐसा कुछ एक वहाँ पर लिखा हुआ है। How do you know? I mean, think about it. I mean, how do I know when I have not tried? Have you? I mean, how many of you want to do marketing later on? Have you tried by marketing? I mean, have you done something marketing? Maybe yes, you have. You've done something. So how do you like it? Okay, great. Have you done something? Digital marketing, sir. Are you doing? Yes. What are you doing in digital marketing? I do freelance ad posting. So he has done something. So you like it? So he knows. What about you? Do you like it? So they're doing something. So that's why they know that they want to get into marketing. What about the rest? And I'm telling you because you don't want to miss this out. This advice nobody's going to come and give you. Trust me, because nobody knows. Nobody won't be interested also telling you. So do something, even if there's a hint of, even if there's a 2% probability that I like finance, I would go and explore it. How do I explore it? Learn. Learn. Financial modeling is the actual application of finance, which you do and you realize, okay, maybe this is not a cup of tea. आपके 40 साल बच जाएंगे, क्योंकि इसके बाद 4 साल में आपको ऐसा नहीं हो जाना है कि oh shit, I'm in the wrong job. How do I get out? Then you will come back to me and say, sir, how do I shift back now? I'm like, too late. 17 years have passed. Now you have to continue or leave, right? So second is, if possible, if you have the bandwidth, then invest yourself into doing additional certifications or qualifications like CFA. I discovered CFA by chance in 2011. I had no plans because I explored CA, CS, ICWA, and then none of that had that investments angle. And then suddenly I came across a qualification like CFA through my seniors, when there was a book lying down there, and when I read the book, it was like very interesting. So यही चाहिए था. And I got into that path. I had no plans कि मेरे को ये भी नहीं पता था कि CFA की वैल्यू क्या है इंडिया में, क्योंकि उस टाइम पे सही में 2011 में कोई नहीं जानता था CFA के बारे में. शायद आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री जानती है. इंडस्ट्री में आपको दिखा क्वालिफिकेशन में इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर CFAs. ठीक है. Another thing that you can do is read these 5 books that I've written here. Okay, I have given in the order of importance. One I have given you is One Up Wall Street. If anybody of you
wants to understand how mutual fund works. Does the mutual fund manager every day come and pick up stocks? No, he does not. Because we don't know, right? Even I didn't know. I had done CFA and I still didn't know that how does a mutual fund manager actually run a mutual fund. So, One Up Wall Street, written by Peter Lynch. Peter Lynch is a US-based fund manager, very famous fund manager. And he wrote that book on how to pick up stocks and how it is picked in the mutual fund industry. Second book which I've given here is Financial Shenanigans. अभी जो मैंने आपको बताया था ना चोर पकड़ने का, कि कंपनी का जो डेटा है वो मैनिपुलेटेड भी हो सकता है, वो कैसे ढूंढना है, वो फाइनेंशियल शेनानिगन्स बुक है हावर्ड शिलिट की. हावर्ड शिलिट, फैंटास्टिक बुक अगर आपको फोरेंसिक्स में इंटरेस्ट है तो, अकाउंटिंग फोरेंसिक्स. थर्ड बुक है मार्केट विजर्ड्स, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है बाय द वे, ठीक है. मार्केट विजर्ड्स विच शोज यू वेरियस वेज बिग फंड मैनेजर्स हैव मेड मनी. एक स्ट्रेटेजी नहीं है, हजारों स्ट्रेटेजी है. एंड फाइनली दो और बुक है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये तो पता होगा, वॉरेन बफे की बुक है, नॉट रिकमेंडेड टू बी रेड इनिशियली, ठीक है. 0 to 1 पीटर थियल की बुक है, इज अबाउट हाउ डू यू क्रिएट बैरियर्स टू एंट्री. आपने पेपैल, पता है आपको पेपैल का जो को फाउंडर है, इनफैक्ट एलॉन मस्क का जो को फाउंडर है, उसकी बुक है कि व्हाई सो मेनी बिजनेसेस फेल. यू माइट हैव द ब्रिलियंट प्रोडक्ट. आपको पता है कि एप्पल जैसे कितने और कंपनीज थे, आपको आज लगता है कि एप्पल तो एप्पल है यार, मतलब क्या कंपनी है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कितने सेम लेवल पे कंपनीज निपट गई थी. सो व्हाई? दिस इज नॉट, द रीजन इज नॉट प्रोडक्ट, द रीजन इज राइट एट द राइट टाइम, द राइट टीम, the right barriers to entry that they took, the right investor that they took, the right investment that they did, right? And when you do this, when you are in second year, you will be exactly at the right time for the right internship to be done and then move into placements.